the classification based upon atomic number. So in the previous classes, we have discussed all the classification which based upon the atomic masses, in which we were discussing about Dobby-Rinier classification. Then we discussed about the Newland's classification. Then we discussed about the Laudermire, and last one was the Mendeleev classification. So now we are going towards the classification which is based upon the atomic number. Now the modern periodic law. So the first law which based upon the atomic number is the modern periodic law. So different attempts to discover atomic structure was done in 1904 to 1913. इससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी. तो साइंटिस्ट ने इन ईयर्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर की के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए वर्किंग की थी. उसके बाद ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया था. Atomic number was discovered in 1930 by Henry Moseley and he gave modern periodic law. तो 1913 में हेनरी मोजली ने क्या किया था, इन्होंने एटॉमिक नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया था कि इट इज़ अ मेन फीचर ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर. देन ही gave modern periodic law or introduced modern periodic law by using the atomic number. In a similar way, he is a British physicist. Now, as you have seen that what is the basis of classification? So the basis of classification is he arranged the element according to increasing order of their atomic number. So now the statement, the properties of the element are the periodic function of their atomic number. Here the properties shows the physical as well as chemical properties. It means that physical and chemical properties will repeat their properties after some interval of time if we arrange according to increasing atomic number. Now, after some further discoveries, modern periodic law was restated as the physical and the chemical properties of the elements are the periodic function of electronic configuration of their atoms. So उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं टू दियर एटॉमिक नंबर. जबकि इन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि आपके पास जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक नंबर के भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, बल्कि वो किसके पीरियोडिक फंक्शन है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पीरियोडिक फंक्शन है. एंड यू नो वेरी वेल नाउअडेज द periodic table is prepared by using the electronic configuration. Now, what are the silent features or the advantages of the modern periodic law? First of all, the modern periodic law was based upon atomic number instead of atomic masses. So it's a main point which removed many drawbacks of the Mendeleev classification. Here question comes that give the modified form of Mendeleev classification and how it removes the defects of the Mendeleev classification. So here, if I am asking you about the modified form of the Mendeleev classification, so you will write the modern periodic table and the advantages or the silent features of the modern periodic table. Now, the correction of the position of the elements, as we have discussed that there were some problem in the Mendeleev classification, that he deviated his law by putting the argon before the potassium, because the mass of the argon was greater than the mass of the potassium.
बट जब हमने एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया तो हमने ये देखा कि आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 था और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 था। इट मींस वो पोजीशन बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अगर हम मास देखें तो मास ऑफ आर्गोन ज़्यादा आता है और मास ऑफ द पोटेशियम ज़्यादा आता है। तो जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट की गई तो ऑलरेडी वो वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया है। Now, position of the isotopes of the elements has same atomic number, so occupy same position. You know very well, yesterday we discussed that he didn't justify the position of the isotope. Mendeleev didn't justify the position of the isotopes. Isotopes are having same atomic number but different mass number. So if they are having different mass number तो इनकी position different आनी चाहिए. Like मैंने कल आपको example दी थी कि अगर कार्बन 12 है, 13 है, 14 है, तो अगर मेंडलीव अरेंज कर रहा है एटम्स एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो 13 को उसको अलग रखना चाहिए था, 14 को अलग रखना चाहिए था और 15 को अलग रखना चाहिए था. लेकिन यहाँ पे हुआ क्या आपके पास कि इन्होंने इसको जस्टिफाई नहीं किया था. फिर यहाँ ये देखा गया कि क्योंकि इन्होंने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज किया है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर वो वाला पॉइंट भी क्लियर हो रहा है कि एटॉमिक नंबर क्योंकि सेम होता है आइसोटोप्स का तो वो सेम ही पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे. नाउ द पोजीशन ऑफ द लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को इन्होंने बिल्कुल सेपरेटली बॉटम में प्लेस किया था और जबकि मेंडलीव ने लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की कोई पोजीशन जस्टिफाई नहीं की थी. द पोजीशन ऑफ द coinage metal and the alkali metal. Coinage metal and the alkali metal were placed separately in group. Coinage metal को अलग रखा गया था और alkali metals को अलग प्लेस किया था. जबकि मेंडलीव ने क्या गलती की थी, उन्होंने coinage metal और alkali metals को एक ही ग्रुप में रख दिया था. नाउ पीरियड और ग्रुप्स यहाँ पे कितने हैं? देयर आर 77 हॉरिजॉन्टल रॉज, जिसको हम क्या कहते हैं? पीरियड. जो भी आपके पास हॉरिजॉन्टल रॉज होंगी वो पीरियड कहलाएंगे और जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे वो ग्रुप्स कहलाएंगे. सो देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रॉज while 18 vertical columns, and 18 vertical columns further forms 8 A groups and 8 B groups. इन 18 vertical columns को भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था इन्होंने, कुछ A ग्रुप में रखे थे और कुछ B ग्रुप में रखे थे. 8 ग्रुप्स को इन्होंने A में रखा था, A फैमिली में रखा था, और 8 ही ग्रुप्स को इन्होंने B फैमिली में रखा था. Now here is a periodic table. So you can see here that here are these two lines. It is alkali metals and alkaline earth metals. ठीक है, इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक. जो सेंटर में आपको ब्लू नजर आ रहा है ये सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं. इसी तरह ये सारे के सारे पी ब्लॉक हैं जो कि आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रहे हैं. नीचे ये लेंथेनाइट सीरीज है और ये एक्टिनाइट सीरीज है. तो इस तरह इन्होंने डिफरेंट, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 इन्होंने रॉज बनाई थी जिनको हमने पीरियड कहा. और अगर ये आप ये टोटल काउंट करेंगे इट विल बी 18. 18 को इन्होंने 8 ए ग्रुप्स में डिवाइड किया था. अगर आप देखें ये 1 2 देन 3 4 5 6 7 8 ये 8 ए ग्रुप्स हैं और जो 10 वर्टिकल कॉलम्स थे इन्होंने इससे 8 बी ग्रुप बनाए. जैसे आप देखें 3B 4B 5B 6B 7B देन 1B और 2B. 8B में 3 वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने इंक्लूड किया था. इसलिए 8 8 तो 16 आने चाहिए थे लेकिन ये कितना आया था हमारे पास 18 आया था. क्यों? क्योंकि 8B ग्रुप्स के अंदर इन्होंने 3 वर्टिकल कॉलम्स को प्लेस किया था. तो आप इस पीरियोडिक टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. लेटेस्ट अपडेटेड है. आपकी बुक में जो पीरियोडिक टेबल है वो अपडेटेड नहीं है. Now the long form of the periodic table.
Okay, what is the long form of the periodic table? So he classified, classification which is done by using the electronic configuration is known as long form of the periodic table. ये समझना आप मॉडिफाइड फॉर्म भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की थी, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया गया था अबाउट द पीरियोडिक टेबल. Now, long form of the periodic table. The tabular arrangement following of Avva principle is called long form of the periodic table. इन्होंने अव्वा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये पर्टिकुलरली किसी साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ये समझना आप एक किस्म की अरेंजमेंट की गई थी अकॉर्डिंग टू अव्वा प्रिंसिपल, और ये मॉडिफाइड फॉर्म ही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की. अव्वा प्रिंसिपल अगर आपको याद हो तो आपने फर्स्ट ईयर में अव्वा प्रिंसिपल पढ़ा है. अव्वा प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले लोअर एनर्जी लेवल पे जाते हैं और फिर हायर एनर्जी लेवल में फिल हो रहे होते हैं. It has 7 horizontal rows called periods and 18 vertical columns which forms 8 A groups and 8 B groups as we have discussed in the modern periodic law. So here are one by one introduction of the periods. So period number 1. अच्छा, आई थिंक मेरी मीटिंग का टाइम ना सिर्फ 2 मिनट्स रहता है क्योंकि मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया था. तो मैं ऐसा करूँगी, या तो मैं रीशेड्यूल अभी कर लेती हूँ दोबारा, तो आप लोग दोबारा इसी आईडी से लॉगिन हो जाइएगा, मैं दोबारा ऑनलाइन आ जाऊंगी इसी पर, क्योंकि 10 मिनट्स हमारे अभी रहते हैं. जी दानिया, आप कुछ पूछ रही हैं? जी अनम्यूट करें अपने आप को. मिस, इससे प्रीवियस वाली स्लाइड को एक दफा रिपीट कर दें. अच्छा, ये वाली बेटे. ओके. Long form of periodic table, basically it is just the arrangement of the elements according to the above principle. सिर्फ एक किस्म की अरेंजमेंट की गई थी, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई थी कि क्या होता है. सिंपली जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लास्ट टाइम आया था उसने जब री स्टेटमेंट की थी कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी को आगे लेते हुए अव्वा प्रिंसिपल को यूज करते हुए एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था एक पर्टिकुलर टेबल की फॉर्म में, वो कहलाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो हमारी मीटिंग ऑलमोस्ट जो है एंड हो रही है. मैं अगेन लॉग इन कर रही हूँ, आप लोग भी काइंडली आ जाइए.